Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir and welcome back in our English learning portal. In the last video, we are understanding about narration. What is narration? What is direct speech? What is indirect speech? And even we are able to understand about master rule. So in today's video, we are able to understand about the generic rule. What is generic rule? Because in narration, in that particular video, I taught you about there are three rules. In three rules, first one is your master rule, second one is your generic rule, and the last one is your specific rule. In generic rule, we need to understand about change of pronoun. Second point which we need to understand is change of person. Third point which we need to observe or understand is about change of tense. And the last one, in generic rule, change of other words. मीन्स जेनेरिक रूल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में समझना होगा, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, चेंज ऑफ टेंस के बारे में और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के बारे में. ओके, सो लेट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट. In pronoun, there are four cases. First one is nominative case. This one is also known as subjective case. The other one is possessive case. Next one is objective case. And the last one is reflexive case. Because in narration, we will find such kinds of pronoun. Now, there are three persons, first person, second person, and third person. In first person, what is in singular? I. I का possessive में क्या होता है? My. Okay, in objective, me, and in reflexive, myself. Okay, I का प्लूरल में क्या हो जाता है? we. we का क्या होता है? possessive, our. in objective case, us, and in reflexive, our self. Okay, so this one is your first person. Now in second person, second person में क्या होता है? you. you का possessive case क्या होता है? yours. Okay, in objective case your, and in reflexive case yourself. Okay, next one is third person singular number. he, possessive case में क्या होता है? his. objective case him, and in reflexive case himself. Got it? Next one is she. she, her. In objective case also we need to use her, and in reflexive case herself. And the last one is they,
possessive case, their, objective case, them, themselves. You need to write down these things in your copy. This one is third person singular number and this one is plural number. So what is I? I का possessive क्या होता है? My, objective me and reflexive case myself. We, our, us, ourselves. You, yours, your, not your. In objective case, you. And in reflexive case, yourself. He, his, him, himself. She, her, herself. They, their, them, themselves. So you need to write down these things in your copy as an important point. So this topic is completed. Now the next thing which we need to understand, change of person. और चेंज ऑफ पर्सन के केस में इस टेबल का यूज होगा. Okay, so now I am going to clean the board. So before that, just you need to write down these things in your copy. Okay, so I am going to clean the board. We will try to understand about change of person. इसको समझने की आप कोशिश करते हैं. So in direct speech, what is your structure? Subject plus verb, comma, inverted comma, subject plus verb plus other word, punctuation mark and inverted comma close. So now have to say me one thing. पर्सन होने का पॉसिबिलिटी कहां सबसे ज्यादा है? इस प्लेस पर और यहां. पर्सन होने के चांसेस बस इतने ही है. अब नाउ आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अबाउट द सन रूल. नाउ व्हाट इज सन रूल? Those who don't have any idea just have to understand this thing. S represent for subject, O represent for object, and N represent for no change. Whereas 1 represent for first person, 2 represent for second person, and 3 represent for third person. So this one is your reported speech and this one is your reporting verb. अब क्या कहा गया है? रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. मीन्स अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का अर्थ क्या होता है? आई एंड वी. अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? First person of reported speech means if the first person is used in reported speech, then it should be changed according to the subject of reporting verb. Point 1 करके लिख लीजिए. ओके, अब फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. He says, comma, inverted comma,
आई एम अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब यहां पर बताया गया फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन है। तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, मीन्स इसके हिसाब से यह चेंज होगा। अब एक आपको मूल मंत्र बता देते हैं। जो कुछ भी यहां लिखा हो, जो कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर आप ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है, आप एग्जैक्टली इसको कॉपी कर देंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? ही says, this one is assertive sentence, so what we need to use? Inward conjunction कौन सा यूज हो जाएगा? What kinds of conjunction we need to use in the place of inverted comma? That. अब मैंने क्या बताया है? इसको एज यूजुअल लिख देना है। यहां आई के बदले में अब क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद पढ़ा नहीं गया है, डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे ही के जगह पर सी का यूज किया जाता तो क्या हो जाएगा? सी सेज डैट। सी गॉट दिस पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या कहा गया? सेकेंड पर्सन मीन्स वेन एवर यू विल फाइंड second person in reported speech, whenever you will find second person is used in reported speech, then it should be changed according to the object of reporting verb. लिखते भी चलिए साथ के साथ, just have to write down these things in your copy. नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सी says, comma, inverted comma, you are my servant. Just have to focus on the board, have to understand each and everything, and if you have any problem then just write down in comment box. Even you can also write down in my personal number. यहां पर आपके पास यह क्वेश्चन है, दिस वन इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब क्या कहा गया है? इसको एज यूजुअल अभी आप लिख देंगे, सी सेज। दिस वन इज अगेन असर्टिव सेंटेंस, सो व्हाट यू नीड टू यूज? सी सेज दैट। अब क्या कहा जा रहा है? सेकेंड पर्सन आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है, यहां तो दिख गया ये सेकेंड पर्सन है, चेंज किसके हिसाब से होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। अब क्या यूज हो सकता है? इन दिस सर्कमस्टांसेज यू कैन एज्यूम एनीथिंग। मीन्स आप इसको अगर आप यहां पे एज्यूम करते हैं, क्या लिखा हो? टू मी लिखा हो सकता है, टू हिम, टू हर, टू देम, टू यू। मीन्स आप इन सभी का कल्पना कर सकते हैं। हियर कल्पना इज नॉट अ वर्ड, यू कैन इमेजिन ऑल दोज थिंग्स। अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में मी को अगर आप सोच रहे हैं, या हिम सोच रहे हैं, हर सोच रहे हैं, देम सोच रहे हैं, यू सोच रहे हैं, कोई भी आप प्रोनाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। यू आर टोटली फ्री टू एज्यूम एनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सुनाओ, अगर आपने यू के बारे में सोचा, जो यहां मी लिखा हुआ है, तो मी किसका आपका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का, जो आप प्रोनाउन के टेबल में समझे थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी सेज डैट आई। आप यहां पे आई लिख देंगे। अब आपके मन में आया, नहीं मैं हिम सोचूंगा, तो हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ही का।
तो आप आई की जगह पर क्या यूज करेंगे? ही। हर का आपने एजम्पशन किया, आप सी लिख सकते हैं. देम इज यूज फॉर दे, एंड यू अगेन यू, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होता है. अगर आपका ये पांचों में से कोई भी रहेगा तो सब के सब सही होंगे. दिस थिंग इज नॉट एक्सप्लेन इन द बुक, नॉर्मली यू कैन नॉट फाइंड, बट आई एम गोइंग टू डिटेक्ट दीज थिंग्स. आप इनमें से कोई भी चीज अगर लिखते हैं वो सारा का सारा सही होगा. इसके लिए टेंशन होने की जरूरत नहीं है. इसके बाद पढ़ाया नहीं गया तो इसको डॉट करके इंड करें. सो द लास्ट पॉइंट, अगर यहां आपको ही, सी या नेम कोई दिख जाए, अब क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी के बारे में समझते हैं. एक कंडीशन आपके पास एग्जांपल, अगेन सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ डॉक्टर. Now have to understand the rule. Write down the third point. Whenever you will find third person in reported speech, then that should be or that should not be changed. क्योंकि यहां लिखा हुआ no change. Then that should not be changed. अब यहां पर ये थर्ड पर्सन आपको दिख गया, चेंज हो सकता है? हरगिज नहीं. सी सेज, ये अगेन आपका कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है. सी सेज डैट, ही एज यूजुअल हो जाएगा. अगर यहां पर सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी लिखा हुआ है, सी इज अ डॉक्टर, अब क्या हो सकता है? अगेन ये आपका कौन सा केस है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा. क्या लिख देंगे? सी सेज दैट सी. अब एक केस कौन सा है? नेम अगर आ जाता है. अगर नेम आ जाता है तो क्या नेम की जगह पे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे. इसमें आपको दो एग्जांपल आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं. फर्स्ट वन, अगर लिखा हुआ रहे सी सेज राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट में? सी सेज दैट. थर्ड पर्सन में क्या कहा गया है? नो चेंज. तो राम की जगह पे क्या आ जाएगा? राम ही एज यूजुअल आ जाएगा. मीन्स थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होंगे. नो चेंज विल टेक प्लेस व्हेन third person is used in reported speech. Okay, and the last one point in this change of person, अगर यहां पे यूज किया जाए राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज अ गुड बॉय, अब क्या होगा? एक तो बता दिया है जो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. अब ये आपका एक एक्सेप्शन जो आपको अपने दिमाग में रखना है, विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. राम सेज डैट. अब राम राम एक ही सेंटेंस में दो बार यूज नहीं हो सकता है. दिस वन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ नरेशन, दिस वन कम्स अंडर नाउन. क्योंकि नाउन में जब अपने लोग पढ़े होंगे एक सेंटेंस में एक ही नाउन मीन्स एक ही प्रॉपर नाउन बार बार यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सुनने में क्या होता है? खराब लगता है.
So we cannot use the same proper noun in a single sentence. So what we need to use? Just राम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? ही से रिप्लेस कर दिया जाएगा. Means he. Now things are clear. So just I'm going to revise all those things in a quick glance. Whenever you will find first person in reported speech, then that should be changed according to subject of reporting verb. Whenever you will find second person in reported speech, then it should be changed according to object of reporting verb. But whenever you will find third person is used in reported speech, then no change will take place in indirect narration और indirect speech. क्लियर हो चुका है? एक छोटा सा आज के वीडियो में एक लास्ट जो आपको हिंट बता दे रहे हैं. बहुत बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेज के बदला में टेल्स का यूज करते हैं. यह कंफ्यूजन सिर्फ आपका एक क्लियर कर देते हैं. जब कभी भी वेन एवर यू विल फाइंड सच काइंड्स ऑफ थिंग, सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीन्स अगर आपको सेज या सेड से के बाद आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट आपको अगर दिख जाता है, उस सर्कमस्टांसेज में चेंज हो जाता है. लेकिन अगर टू मी नहीं हो तो वह एज यूजुअल इनडायरेक्ट में आ जाता है. समझने की कोशिश कर लेते हैं. अगर सिर्फ से अकेला लिखा हुआ रहे तो से का से ही रह जाएगा इनडायरेक्ट में. सेज लिखा हो सेज ही आ जाएगा. से टू अगर यूज कर दिया जाए यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल में. सेज टू अगर लिखा हुआ रहे तो टेल्स में, और अगर सेड लिखा हुआ हो तो सेड में ही रहेगा. इफ सेड टू इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, देन दिस वन इज चेंज्ड इनटू टोल्ड. Now are you able to understand all those things? Means whenever to me or even to plus object is not used in direct speech, then no change will take place in say, says and said. Just you need to copy down the same word. Okay? But whenever to plus object is used in direct speech, then that one will be converted into say to converted into tell, says to converted into tells, and said to converted into told. So these are the basic things which you need to understand in narration. Now in the next video we will try to understand about change of tense. Okay? And hope if you really like this video, then please subscribe my channel. Thank you.